हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो टेस्ट सीरीज 3 का सॉल्यूशन लेके मैं इस वीडियो में आया हूँ आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को टेस्ट सीरीज से फायदा हो रहा होगा। और जितने भी लोग इवैल्यूएशन के लिए अपना शीट भेज रहे हैं, मैं उनको एक वीक के अंदर इवैल्यूएट करके और नेसेसरी फीडबैक के साथ शीट वापस ईमेल के थ्रू सेंड कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं जो आपका टेस्ट 3 हुआ था और उसमें जो भी निबंध, एस्से और ट्रांसलेशन के प्रश्न आए थे, उसका उपयुक्त उत्तर या उपयुक्त सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उस पे हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस तरह का कुछ आपका शीट होता है टेस्ट सीरीज में। अब आते हैं कि इसका पहला प्रश्न क्या था। पहला का ये पार्ट था आपका, राइट एन एसे इन अबाउट 500 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या टॉपिक आपको दिए गए थे? द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा टॉपिक था आपका कास्ट सेंसस इन इंडिया, नेसेसिटी और पॉलिटिकल टूल। चौथा टॉपिक था आपका प्राइवेटाइजेशन ऑफ एडुकेशन। तो इसमें से आपको किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके आपको 500 वर्ड्स में ऐसे लिखना था। लेकिन मैं यहाँ पे आपको चारों टॉपिक्स पे एक मॉडल ऐसे लेके आया हूँ, जिससे कि आपका ये चारों टॉपिक्स आपका प्रिपेयर हो सके, आपका रेडी हो सके। तो इस तरह का अगर कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड या यही टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए देख लेते हैं, पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक था आपका द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें एक कोट से स्टार्ट करना चाहिए इससे को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। तो हमने इसमें कौन सा कोट यूज किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन इंटेलिजेंस बट ए टूल टू एम्पलीफाई इट। अब आगे जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हमने क्या लिखा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ इवन इफ वी डू नॉट ऑलवेज रियलाइज इट। From voice assistants like Alexa and Siri to recommendation system on YouTube and Netflix, AI is everywhere. The idea of machines that can think and learn like humans once seemed like science fiction, but today it is a reality. AI is growing at a rapid pace, changing industries, businesses, and the way we interact with technology. Many companies now depend on AI to make their operations more efficient, and people use AI powered devices daily without even thinking about it. तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में, वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द राइज ऑफ एआई is the vast amount of data generated every day. Computers can now process and analyze this data much faster than humans, making AI highly efficient in decision making. Industries such as healthcare, finance, transportation, and entertainment are using AI to improve services. In healthcare, AI helps doctors detect diseases early and suggest the best treatments. AI powered robots assist in surgeries with precision that reduces risks. In transportation, self driving cars are being developed to make travel safer by reducing human errors. Many companies use AI for customer service with chatbots answering questions and solving problems instantly, making businesses more efficient. AI is also widely used in fraud detection, preventing cybercrimes, and improving security. Next paragraph. Another major reason behind AI's rapid growth is the improvement in machine learning, a type of AI that allows computers to learn from experience. Unlike traditional programs that follow fixed instructions, machine learning enables system to improve over time. For example, Google search engine keeps getting better by learning from the billions of searches people make every day. Social media platforms like Facebook and Instagram use AI to personalize content, showing users posts they are most likely to engage with. AI is even being used to generate human like text, compose music, and create digital art, blurring the line between human creativity and machine capabilities. Next paragraph. Despite its many advantages, AI also raises concerns. Many people worry that machines might replace human jobs. While AI can handle repetitive tasks efficiently, it cannot completely replace human creativity and emotions. Instead, new job opportunities are being created in AI related fields, requiring people to adapt and learn new skills. Another concern is data privacy. As AI systems collect and analyze personal information, if not handled properly, this data can be misused, leading to security risks. Governments and organizations must establish strict policies to ensure AI is used responsibly and does not violate individual rights. Our conclusion, the future of AI is full of possibilities. Scientists and engineers are working to make AI more powerful and useful while ensuring that it remains ethical and safe.
AI is expected to play a key role in solving global problems such as climate change, medical research, and disaster management. However, it is important for governments and companies to set clear rules and guidelines to prevent misuse. इसके बाद यहाँ से आपका कंक्लूजन है, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज है। AI is no longer just a futuristic dream, it is shaping our world in real time. While it brings great benefits, it also comes with challenges that need careful handling. The key lies in using AI responsibly and making sure that it helps humanity rather than harms it. As technology continues to evolve, AI will likely become an even bigger part of our lives, making things faster, smarter and more convenient. तो इस तरह से आपका 500 वर्ड्स में पहले टॉपिक पे आपका ऐसे फिनिश होता है। दूसरा टॉपिक था आपका सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए हमने कोट क्या यूज किया है, देखिए, सेक्युलरिज्म इज नॉट एन अब्सेंस ऑफ रिलीजन बट द प्रेजेंस ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल रिलीजन्स। इस कोट के साथ हमने इस एस्से को स्टार्ट किया है। अब आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग। India is a diverse country where people follow different religions, speak different languages, and have different cultures. To ensure unity among such diversity, the Indian Constitution upholds secularism as a fundamental principle. Secularism in India means that the government treats all religions equally and does not favor or discriminate against any religion. The idea is important for maintaining peace and harmony in a country with multiple faiths. The word secular was added to the Indian Constitution in 1976 through the 42nd Amendment. However, even before this, secularism was deeply rooted in India's governance. The Constitution guarantees freedom of religion under Article 25, allowing every individual the right to practice, profess, and propagate any religion. This ensures that no one is forced to follow a particular faith and that religious beliefs remain a personal choice. Next paragraph. The Indian Constitution also provides for the separation of religion and government. The state does not interfere in religious matters and religious institutions do not control the government. This ensures that policy and laws are based on justice and equality rather than religious beliefs. At the same time, the government can regulate religious practices if they violate human rights or create social issues. For example, practices like untouchability and child marriage have been banned despite being linked to certain traditions. Next paragraph. One of the key aspects of Indian secularism is its positive approach, which allows the government to support all religions without promoting any one religion over others. The state provides financial aid to religious institutions, manages minority welfare schemes, and ensures that religious communities are treated fairly. Unlike Western secularism, which strictly separates religion from the state, Indian secularism allows some level of involvement to protect religious harmony and equality. Next paragraph. Despite these constitutional provisions, challenges to secularism exist in India. Religious conflicts, political misuse of religion, and communal violence sometimes disturb the secular fabric of the country. Political parties and groups often use religion to influence voters, leading to divisions in society. Additionally, certain laws and court judgments related to religious matters create debates on whether secularism is being upheld fairly. It is important for citizens and leaders to ensure that secularism remains a guiding principle in governance and social life. Next paragraph. The judiciary plays a crucial role in protecting secularism in India. The Supreme Court has repeatedly upheld the secular nature of the constitution and ensured that no religious group dominates others. Landmark cases like the Keswanand Bharati case and the S.R. Bommai case have reinforced the idea that secularism is part of the basic structure of the constitution and cannot be removed or altered. This legal protection helps maintain balance in a diverse society. अब आते हैं कंक्लूजन पे। Secularism in India is essential for preserving unity in a country with so many religious communities. It promotes tolerance, respect, and peaceful coexistence among different faiths. While challenges exist, the commitment to secularism in the Constitution ensures that India remains a nation where people of all religions can live together with dignity and equal rights. Protecting this principle is important for the country's democratic and social stability. तो इस तरह आपका 500 वर्ड्स में दूसरे टॉपिक पे भी इससे आपका फिनिश होता है। आपका तीसरा टॉपिक क्या था, कास्ट सेंसस इन इंडिया, नेसेसिटी और पॉलिटिकल टूल। तो इसको हमने कौन से कोट से स्टार्ट किया है, देखिए, कास्ट इज नॉट जस्ट ए डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज ए डिवीजन ऑफ लेबरर्स। किसके द्वारा बोला गया है कोट, बी आर अम्बेडकर।
अब आगे इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? द कास्ट सिस्टम हैज बीन अ डीप रूटेड एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर सेंचुरीज. Although the Indian constitution promotes equality, caste-based discrimination still exists in many parts of the country. In recent years, the demand for a caste census has grown stronger. A caste census means collecting data on different caste groups in the country, similar to how the government collects data on religion, language, and economic status. Supporters argue that it is necessary for better policy making, while critics believe it is a political tool used to gain votes. तो इस तरह से हमने इसका इंट्रोडक्शन लिख लिया. नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? वन ऑफ द मेन आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ कास्ट सेंसस इज दैट it provides accurate data on different caste groups. The last caste-based data was collected in 1931 during British rule. Since then, there have been changes in population growth and socio-economic conditions, but there is no updated data. A caste census would help the government understand the current status of different communities and make policies that truly benefit disadvantaged groups. Without proper data, reservation policies and welfare programs may not be reaching those who need them the most. Next paragraph. Supporters also believe that a caste census would help address social and economic inequalities. Many caste groups claim they are underrepresented in education, government jobs, and other sectors. If the government has clear data, it can revise policies to ensure fair representation. For example, if a particular backward caste is found to have poor access to education and employment, special schemes can be introduced for their upliftment. A caste census would provide a clear picture of inequality and help in bridging the gap between different social groups. Next paragraph. On the other hand, critics argue that a caste census could be misused for political purposes. In India, caste plays a major role in elections, and political parties often use caste-based strategies to gain votes. If caste data becomes available, there is a possibility that politicians will use it to strengthen vote banks instead of focusing on development and welfare. Some fear that this could deepen caste divisions in society instead of reducing them. Instead of bringing people together, a caste census might encourage identity-based politics and further divide communities. Next paragraph. Another concern is that focusing too much on caste would divert attention from economic and educational development. Many believe that instead of categorizing people based on caste, policies should focus on poverty and social disadvantage as a whole. If a person is economically weak, they should receive support regardless of their caste. Critics argue that reservations and welfare programs should be based on financial need rather than caste identity. अब आते हैं कंक्लूजन पे. कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? The debate on the caste census remains complex. While it can provide valuable data for policy making and ensuring social justice, it also carries the risk of political misuse. The challenge lies in ensuring that the data is used for development and equality rather than for electoral gains. If implemented with proper safeguards, a caste census can be a useful tool to create a more just and inclusive society. However, careful planning is needed to prevent it from becoming a divisive issue. इस तरह आपका 500 वर्ड्स में इस टॉपिक पे भी आपका ऐसे फिनिश होता है. अब आपका फोर्थ टॉपिक क्या था? प्राइवेटाइजेशन ऑफ एडुकेशन. तो इस पे हम लोग कोट क्या लिखा है? एडुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड. इस कोट के साथ हमने इस ऐसे को स्टार्ट किया है. अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? एडुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ए नेशंस प्रोग्रेस. अ वेल एडुकेटेड सोसाइटी लीड्स टू economic growth, scientific advancements, and social development. In recent years, privatization of education has become a major topic of discussion. Privatization refers to the increasing role of private institutions in providing education, reducing the dependence on government schools and colleges. While some believe privatization improves quality and efficiency, others argue that it makes education expensive and inaccessible to the poor. Next paragraph. One of the biggest advantages of privatization is the improvement in quality. Many private schools and universities offer better infrastructure, experienced teachers, modern technology, and advanced learning methods. They focus on practical knowledge, skill development, and global exposure, which help students compete in the job market. Unlike government schools, which often suffer from poor facilities and teacher shortages, private institutions provide a more structured and disciplined learning environment. This attracts parents who want the best education for their children. Privatization also encourages competition, which leads to innovation. Private institutions constantly improve their teaching methods to attract students. This results in better curriculum design, use of digital tools, and career-oriented courses.
Many private colleges offer specialized programs in fields like artificial intelligence, biotechnology, and business management, which help students gain industry relevant skills. Competition among institutions ensure that education remains dynamic and adapts to changing global trends. Next paragraph. However, one of the biggest disadvantages of privatization is that it makes education expensive. Private schools and universities charge high fees, making it difficult for students from poor backgrounds to afford quality education. Many talented students miss out on opportunities simply because they cannot pay for admission. This increases inequality in society, where only the rich can access the best education while the poor struggle with limited resources. Even scholarships and financial aid programs do not always cover the high costs of private education. Next paragraph. Another concern is that privatization can lead to commercialization of education. Many private institutions focus more on making profits rather than providing quality learning. They charge high fees but do not always ensure the best teaching standards. Some colleges admit students based on their ability to pay rather than their merit. This affects the overall quality of education and reduces opportunities for deserving students. In contrast, government institutions are not driven by profit and focus more on equal access to education. Next paragraph. Privatization also affects teachers. Many private schools and colleges do not provide job security, fair salaries, or proper working conditions for educators. Teachers in private institutions often have to work under strict conditions with heavy workloads, while government school teachers receive better job benefits. This can reduce the motivation of teachers, affecting the quality of education in private institutions. अब आते हैं conclusion पे. While privatization has improved education in many ways, it also creates challenges that need to be addressed. A balance between private and public education is necessary to ensure that quality learning is available to all. The government should regulate private institutions to prevent exploitation while also improving public schools and colleges. Education is a fundamental right and it should not become a privilege only for those who can afford it. तो इस तरह इस टॉपिक पे भी आपको 500 वर्ड्स में इससे आपका फिनिश होता है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी पे, जिसमें क्या था आपका प्रश्न. निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए. तो निबंध के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक दिए गए थे. पहला टॉपिक था आपका आधुनिक कार्य संस्कृति और वर्क लाइफ बैलेंस. दूसरा टॉपिक था युवाओं की विदेश में बढ़ती रुचि. तीसरा टॉपिक था विज्ञापन और उपभोक्तावाद. चौथा टॉपिक था आपका डिजिटल युग में निजता और स्वतंत्रता. तो इन चारों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके आपको 500 शब्दों में हिंदी में निबंध लिखना था. यहाँ मैं आप लोगों के लिए चारों टॉपिक पे एक मॉडल निबंध लेके आया हूँ ताकि ये चारों टॉपिक आपका तैयार हो जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक था आपका आधुनिक कार्य संस्कृति और वर्क लाइफ बैलेंस. उसमें हमने कोट क्या यूज किया है, संतुलन ही जीवन की कुंजी है. इसके साथ हमने स्टार्ट किया है निबंध को. अब आते हैं भूमिका में क्या लिखेंगे. आज के समय में कार्य संस्कृति में तेजी से बदलाव आ रहा है. पहले के समय में लोग निश्चित कार्य घंटों में काम करते थे और उनके पास परिवार तथा व्यक्तिगत जीवन के लिए पर्याप्त समय होता था. लेकिन तकनीक के विकास और प्रतिस्पर्धा के बढ़ते दबाव के कारण अब कार्य संस्कृति पूरी तरह बदल चुकी है. आज की आधुनिक कार्य संस्कृति में लोग अधिक घंटे काम करते हैं, जिससे उनके व्यक्तिगत जीवन पर असर पड़ता है. इसी कारण वर्क लाइफ बैलेंस एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है. अगला पैराग्राफ. आधुनिक कार्य संस्कृति में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है. इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉल और मोबाइल फोन के कारण अब कर्मचारी कभी भी और कहीं भी काम कर सकते हैं. हालांकि यह सुविधाजनक है, लेकिन इससे कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई है. पहले जहां लोग दफ्तर का काम सिर्फ ऑफिस तक सीमित रखते थे, अब वे घर पर भी काम करते हैं. इससे उनके निजी जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. कई बार कर्मचारी घर पर भी ऑफिस के ईमेल और संदेशों का जवाब देने में व्यस्त रहते हैं, जिससे उन्हें मानसिक तनाव होता है और वे परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाते. अगला पैराग्राफ. वर्क लाइफ बैलेंस का सीधा संबंध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से भी है. जो लोग लगातार अधिक घंटे काम करते हैं, उन्हें तनाव, चिंता और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, शारीरिक व्यायाम करना और मनोरंजन में भाग लेना व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होता है. यदि कोई व्यक्ति केवल काम में व्यस्त रहता है और अपने परिवार या खुद पर ध्यान नहीं देता, तो इससे न केवल उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, बल्कि उसका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है. काम के दबाव के कारण अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जिससे जीवन असंतुलित हो जाता है. अगला पैराग्राफ. आधुनिक कार्य संस्कृति में कई कंपनियां अब वर्क लाइफ बैलेंस को महत्व देने लगी है. कुछ कंपनियां फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, रिमोट वर्किंग और वर्क फ्रॉम होम जैसी नीतियां अपना रही हैं,
ताकि कर्मचारियों को बेहतर संतुलन मिल सके। इसके अलावा कई कंपनियां कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रही हैं और उन्हें तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान और मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दे रही हैं। कुछ कंपनियां वीकेंड्स को पूरी तरह से कार्य मुक्त रखने पर भी जोर दे रही हैं, जिससे कर्मचारी मानसिक रूप से तरोताजा हो सके। नेक्स्ट, हालांकि वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखना केवल कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि व्यक्तियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। समय प्रबंधन करना, कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएं बनाना और अवकाश को महत्व देना आवश्यक है। काम के अलावा परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, शौक अपनाना और स्वयं की देखभाल करना उतना ही जरूरी है जितना कि करियर में आगे बढ़ना। डिजिटल उपकरणों के अधिक उपयोग से बचना और कार्य घंटों के बाद पूरी तरह से आराम करना भी इस संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकता है। अब आते हैं निष्कर्ष पे। समय के साथ कार्य संस्कृति में और भी बदलाव आएंगे, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस का महत्व हमेशा बना रहेगा। यदि व्यक्ति और कंपनियां मिलकर इस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करें, तो इससे न केवल कार्य क्षमता बढ़ेगी, बल्कि व्यक्ति का जीवन भी सुखद और स्वस्थ होगा। संतुलित जीवन ही सफलता और खुशी की कुंजी है। जब एक व्यक्ति अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखता है, तो वह न केवल खुद खुश रहता है, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी उपयोगी बनता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची सफलता है। इस तरह आपका 500 शब्दों में पहले टॉपिक पे आपका निबंध खत्म होता है। दूसरा टॉपिक था आपका युवाओं की विदेश में बढ़ती रुचि, जिसमें हमने कोट क्या लिया है, जहां अवसर अधिक होते हैं वहां कदम खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसको भूमिका में क्या लिखेंगे। आज के समय में युवाओं की विदेश में पढ़ाई और नौकरी करने की रुचि तेजी से बढ़ रही है। पहले के समय में लोग अपने देश में ही शिक्षा प्राप्त कर नौकरी करना पसंद करते थे, लेकिन अब वैश्वीकरण और आधुनिक तकनीकों के कारण युवा विदेश जाने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बेहतर शिक्षा, उच्च वेतन, जीवन शैली और करियर के सुनहरे अवसरों की चाह में वे दूसरे देशों में बसने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, विदेश में पढ़ाई करने का सबसे बड़ा कारण उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय हैं, जहां आधुनिक पाठ्यक्रम और शोध के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं। वहां के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नई तकनीकों, रिसर्च और प्रैक्टिकल ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा विदेशी शिक्षा प्रणाली अधिक व्यवहारिक होती है, जिससे छात्रों को अच्छे करियर विकल्प मिलते हैं। अगला पैराग्राफ, इसके अलावा विदेश में नौकरी के बेहतर अवसर भी युवाओं को आकर्षित करते हैं। कई विकसित देशों में भारत की तुलना में वेतन अधिक होता है, जिससे युवा वहां जाकर अपना भविष्य सुरक्षित बनाना चाहते हैं। वहां की कंपनियां प्रतिभाशाली युवाओं को अच्छी सैलरी और सुविधाएं प्रदान करती हैं। विशेष रूप से आईटी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और प्रबंधन के क्षेत्र में विदेशों में काफी संभावनाएं हैं। अगला पैराग्राफ, एक और महत्वपूर्ण कारण जीवन शैली और सुविधाएं हैं। विकसित देशों में स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचा, शिक्षा प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा अधिक विकसित होती है। वहां की साफ सुथरी और सुरक्षित जीवन शैली युवाओं को आकर्षित करती है। वे एक बेहतर भविष्य के सपने के साथ विदेश जाकर बसने की योजना बनाते हैं। अगला पैराग्राफ, हालांकि विदेश जाने की बढ़ती प्रवृत्ति के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। जब युवा विदेश में बस जाते हैं, तो इससे देश की प्रतिभा को हानि होती है, जिसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों को कुशल और शिक्षित युवाओं की जरूरत है, लेकिन यदि वे विदेश चले जाते हैं तो इससे देश के विकास पर असर पड़ता है। इसके अलावा विदेश में जीवन शैली भले ही आकर्षक लगे, लेकिन वहां अकेलापन, संस्कृति का अंतर और नई जगह पर बसने की चुनौतियां भी होती हैं। अगला पैराग्राफ, कुछ युवा विदेश से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने देश लौटकर यहाँ के विकास में योगदान देते हैं। वे अपनी नई सोच और अनुभवों का उपयोग करके यहाँ नए उद्योग, स्टार्टअप और नौकरियों के अवसर पैदा कर सकते हैं। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे युवा विदेश में शिक्षा और अनुभव लेने के बाद अपने देश में आकर कार्य करें और राष्ट्रीय प्रगति में भागीदार बने। अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो अंत में लिख सकते हैं, निष्कर्षतः लिख सकते हैं, निष्कर्षतः यह कहना गलत नहीं होगा कि विदेश जाने की बढ़ती प्रवृत्ति आज के समय की वास्तविकता है। युवा बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने देश के विकास में भी योगदान देने के बारे में सोचना चाहिए। सही मार्गदर्शन और संतुलन से वे अपने करियर को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपने देश की उन्नति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब युवा अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग अपने देश के विकास के लिए करेंगे, तभी सही मायने में देश और समाज की प्रगति संभव होगी। तो इस तरह से आपका 500 शब्दों में ये निबंध भी आपका फिनिश होता है। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक आपका था विज्ञापन और उपभोक्तावाद। तो इसका हमने क्या कोट इसमें यूज किया है, विज्ञापन केवल उत्पाद नहीं बेचते बल्कि सपने और इच्छाएं भी बेचते हैं। ठीक है, इस कोट के साथ हमने इसको स्टार्ट किया है। भूमिका में क्या लिखेंगे, आज के समय में विज्ञापन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हम जहां भी जाते हैं किसी न किसी रूप में विज्ञापन से प्रभावित होते हैं। टेलीविजन, अखबार, सोशल मीडिया, होर्डिंग्स और मोबाइल ऐप्स
हर जगह विज्ञापन हमारी पसंद और खरीदारी के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यह उपभोक्तावाद को बढ़ावा देता है, जहां लोग जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। अगला पैराग्राफ, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य किसी भी उत्पाद या सेवा की जानकारी देना और उसे आकर्षक बनाकर बेचने में मदद करना है। कंपनियां अपने उत्पादों को बाजार में लोकप्रिय बनाने के लिए तरह तरह की रणनीतियां अपनाती हैं। वे उपभोक्ताओं की भावनाओं से खेलती हैं, उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि उनका जीवन किसी विशेष उत्पाद के बिना अधूरा है। उदाहरण के लिए, सौंदर्य प्रसाधनों के विज्ञापन यह दर्शाते हैं कि सुंदरता का मतलब केवल चमकती त्वचा या परफेक्ट लुक है, जिससे उपभोक्ताओं में अपनी छवि को लेकर असुरक्षा बढ़ती है। अगला पैराग्राफ, विज्ञापनों का प्रभाव बच्चों और युवाओं पर विशेष रूप से पड़ता है। टीवी और इंटरनेट पर दिखाए जाने वाले रंगीन और आकर्षक विज्ञापन बच्चों को महंगे खिलौने, फास्ट फूड और गैजेट्स की ओर आकर्षित करते हैं। सोशल मीडिया पर प्रभावशाली हस्तियों, इन्फ्लुएंसर्स द्वारा प्रमोट किए गए उत्पाद युवाओं को उनके प्रति आकर्षित करते हैं। इससे अनावश्यक खर्च बढ़ता है और लोग उन चीजों पर पैसा खर्च करने लगते हैं जिनकी उन्हें वास्तव में जरूरत नहीं होती। अगला पैराग्राफ, उपभोक्तावाद का मुख्य आधार यह है कि जितना अधिक उपभोग होगा, उतना ही बाजार आगे बढ़ेगा। कंपनियां विज्ञापन के माध्यम से यह संदेश देती हैं कि नए और महंगे उत्पादों का उपयोग करने से जीवन स्तर बेहतर होता है। इसी सोच के कारण लोग बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं और कई बार कर्ज में भी डूब जाते हैं। बड़े ब्रांड्स अपने विज्ञापनों में सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि उपभोक्ताओं में उनके उत्पादों के प्रति विश्वास पैदा किया जा सके। अगला पैराग्राफ, हालांकि विज्ञापन का सकारात्मक पक्ष भी है। यह हमें नए उत्पादों और उनकी विशेषताओं की जानकारी देता है। कई सामाजिक मुद्दों जैसे स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े विज्ञापन लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए, पोलियो टीकाकरण, स्वच्छ भारत अभियान और कोविड-19 से बचाव के लिए चलाए गए विज्ञापनों ने समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। अंत में यह कहा जा सकता है कि विज्ञापन और उपभोक्तावाद का गहरा संबंध है। एक और विज्ञापन हमें जरूरी चीजों के बारे में जानकारी देते हैं, तो दूसरी ओर वे हमें अनावश्यक खर्च करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम विज्ञापनों को समझदारी से देखें और जरूरत और चाहत में फर्क करना सीखें। जागरूक उपभोक्ता बनकर ही हम विज्ञापन के प्रभाव से बच सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो इस तरह आपका 500 शब्दों में ये निबंध भी आपका फिनिश होता है। अब आपका चौथा टॉपिक था डिजिटल युग में निजता और स्वतंत्रता। तो इसके लिए हमने कोट क्या यूज किया है, निजता कोई विलासिता नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है। इसके साथ हम लोग भूमिका स्टार्ट करेंगे। तो भूमिका में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। हर गतिविधि ऑनलाइन हो चुकी है, चाहे वह खरीदारी हो, बैंकिंग हो, शिक्षा हो या मनोरंजन। लेकिन डिजिटल प्रगति के साथ साथ एक बड़ी चिंता भी बढ़ रही है, और वह है निजता और स्वतंत्रता का सवाल। इंटरनेट पर हमारी हर गतिविधि कहीं न कहीं दर्ज हो रही है, जिससे निजता खतरे में पड़ रही है। अगला पैराग्राफ, डिजिटल दुनिया में हर व्यक्ति अपनी जानकारी इंटरनेट पर साझा करता है। सोशल मीडिया पर फोटो, वीडियो, विचार और निजी जानकारियां साझा करना अब आम बात हो गई है। कई बार हम बिना सोचे समझे ऐप्स को अपनी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचने की अनुमति दे देते हैं, जिससे हमारी निजता खतरे में पड़ जाती है। बड़ी टेक कंपनियां हमारे डेटा को इकट्ठा कर उसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस प्रकार हमारी ऑनलाइन गतिविधियां लगातार निगरानी में रहती हैं, जिससे हमारी गोपनीयता कम होती जा रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ, निजता के अलावा डिजिटल स्वतंत्रता भी एक महत्वपूर्ण विषय बन गई है। इंटरनेट के माध्यम से हमें अपने राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन कई बार सरकारें और कंपनियां इस स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास करती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप बढ़ रही है, जिससे लोगों के विचारों को दबाने की कोशिश की जाती है। कुछ देशों में तो इंटरनेट पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या डिजिटल स्वतंत्रता केवल एक कल्पना बनकर रह गई है। नेक्स्ट, साइबर अपराध भी डिजिटल निजता के लिए एक बड़ी चुनौती है। हैकिंग, डेटा चोरी, फर्जी पहचान, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही है। कई बार हमारी व्यक्तिगत जानकारियां अवैध रूप से बेची जाती हैं, जिससे लोग वित्तीय नुकसान का शिकार हो जाते हैं। हैकर्स और असामाजिक तत्व डिजिटल स्वतंत्रता का गलत उपयोग कर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कारण लोग इंटरनेट का उपयोग करते समय असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। अगला पैराग्राफ, हालांकि निजता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। कई देशों में डेटा संरक्षण कानून बनाए गए हैं, जिनसे लोगों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। भारत में भी डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून बनाए गए हैं, ताकि नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा हो सके। इसके अलावा लोग भी अपनी डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्क हो रहे हैं, जैसे मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, अनावश्यक ऐप्स को अनुमति न देना और सोशल मीडिया पर कम जानकारी साझा करना। इसके साथ ही सरकारों और कंपनियों को यह भी समझना होगा कि डिजिटल स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए।
यदि लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं मिलेगी तो लोकतंत्र भी प्रभावित होगा। हमें तकनीक और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना होगा ताकि लोग बिना किसी डर के इंटरनेट का उपयोग कर सकें। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्षतः डिजिटल युग ने हमें नई ऊंचाइयां दी हैं, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी बढ़ी हैं। हमें अपनी निजता की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा और डिजिटल स्वतंत्रता का सही उपयोग करना होगा। तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाती है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सुरक्षा और स्वतंत्रता हमारे अपने हाथों में है। जागरूकता और जिम्मेदारी से ही हम डिजिटल युग में सुरक्षित रह सकते हैं। डिजिटल तकनीक का सही उपयोग करके ही हम एक सुरक्षित और स्वतंत्र डिजिटल समाज बना सकते हैं। तो ये था आपका 500 शब्दों में चौथे टॉपिक पे भी आपका निबंध। तो आपका निबंध और एस्से के सारे टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं। अब चलते हैं ट्रांसलेशन वाले प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न था, दूसरा का पार्ट ए, निम्नलिखित अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपका इंग्लिश पैसेज दिया हुआ था जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना था। तो चलिए इसका अनुवाद देख लेते हैं। हम लोग एक एक सेंटेंस को एक एक स्लाइड में लेकर उसका अनुवाद करते चलते हैं। तो पहला आपका सेंटेंस था, द परस्यूट ऑफ नॉलेज हैज ऑलवेज बीन ए डिफाइनिंग ट्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ज्ञान की तलाश, परस्यूट ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान की तलाश, हैज ऑलवेज मतलब हमेशा से, बीन ए डिफाइनिंग ट्रेट, डिफाइनिंग ट्रेट मतलब विशिष्ट विशेषता, डिफाइनिंग ट्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, ह्यूमैनिटी मतलब क्या हो जाता है आपका मानवता। तो ज्ञान की तलाश मतलब परस्यूट ऑफ नॉलेज, हैज ऑलवेज बीन मतलब हमेशा से, डिफाइनिंग ट्रेट मतलब विशिष्ट विशेषता, ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की। तो पूरा अनुवाद क्या हो गया आपका, ज्ञान की तलाश हमेशा से मानवता की एक विशिष्ट विशेषता रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशंस टू मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसमेंट्स क्यूरियोसिटी हैज ड्रिवन प्रोग्रेस। तो एंशिएंट सिविलाइजेशंस का क्या हो जाता है आपका प्राचीन सभ्यता, मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसमेंट, मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसमेंट का क्या हो जाएगा अनुवाद, आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति, क्यूरियोसिटी का जिज्ञासा, ड्रिवन प्रोग्रेस मतलब विकास को आगे बढ़ाया है। तो फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशंस प्राचीन सभ्यताओं से लेकर टू मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसमेंट्स आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति तक, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, हैज ड्रिवन प्रोग्रेस ने हमेशा विकास को आगे बढ़ाया है। तो ये आपका पूरा अनुवाद हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ग्रेट थिंकर्स एंड इन्वेंटर्स हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू अनकवरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। ग्रेट थिंकर्स मतलब महान विचारक, इन्वेंटर्स मतलब आविष्कारक, डेडिकेटेड मतलब समर्पित करना, देयर लाइव्स मतलब अपना जीवन समर्पित कर दिया, टू अनकवरिंग, अनकवरिंग का अगर अनुवाद करेंगे तो उजागर करने, अनकवरिंग द मिस्ट्रीज मतलब रहस्यों को उजागर करने, ऑफ द यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए। तो क्या हो गया, महान विचारकों और आविष्कारकों ने, ग्रेट थिंकर्स एंड इन्वेंटर्स ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू अनकवरिंग मतलब उजागर करना, द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, डेडिकेटेड देयर लाइव्स। नेक्स्ट सेंटेंस, एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग माइंड्स एंड प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स फॉर द फ्यूचर। तो एजुकेशन शिक्षा, प्लेज अ क्रूशियल रोल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इन शेपिंग माइंड्स, शेपिंग माइंड्स का हम लोग अनुवाद क्या कर सकते हैं, शेपिंग माइंड्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं विचारों को आकार देने में, विचारों को आकार देना, शेपिंग माइंड्स, एंड प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स फॉर द फ्यूचर और व्यक्तियों को भविष्य के लिए तैयार करना। प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स फॉर द फ्यूचर मतलब व्यक्तियों को भविष्य के लिए तैयार करना। तो पूरा अनुवाद इसका क्या होगा पहले वाक्य का, शिक्षा विचारों को आकार देने और व्यक्तियों को भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्या है, हाउएवर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन रिमेन्स अ चैलेंज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, एक्सेस मतलब क्या होता है आपका पहुंच, क्वालिटी एजुकेशन मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रिमेन्स अ चैलेंज, चैलेंज मतलब आज भी चुनौती बना हुआ है, मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब विश्व के कई हिस्सों में। तो पूरा अनुवाद क्या हो गया, हालांकि मतलब हाउएवर विश्व के कई हिस्सों में, मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक बैरियर्स, सोशल इनइक्वालिटीज एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज प्रिवेंट मिलियंस फ्रॉम रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल। इकोनॉमिक बैरियर्स का क्या हो जाएगा आपका आर्थिक बाधाएं, सोशल इनइक्वालिटीज का क्या हो जाएगा सामाजिक असमानताएं, लैक ऑफ रिसोर्सेज मतलब संसाधनों की कमी, प्रिवेंट मतलब रोकना, मिलियंस मतलब करोड़ों, मिलियंस मतलब करोड़ों लोगों के लिए यूज हो रहा है, फ्रॉम रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से। तो इसका पूरा अनुवाद क्या हो गया, आर्थिक बाधाएं यानी इकोनॉमिक बैरियर्स, सामाजिक असमानता यानी सोशल इनइक्वालिटीज और संसाधनों की कमी यानी लैक ऑफ रिसोर्सेज करोड़ों लोगों को मतलब मिलियंस
उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। प्रिवेंट मिलियंस फ्रॉम रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल, करोड़ों लोगों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। नेक्स्ट सेंटेंस, अ सोसाइटी दैट वैल्यूज लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग फॉस्टर्स इनोवेशंस एंड ग्रोथ। सोसाइटी का क्या हो गया आपका, समाज दैट वैल्यूज, वैल्यूज मतलब महत्व देना, लर्निंग मतलब सीखने को, और क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आलोचनात्मक सोच, फोस्टर्स मतलब आपका हो जाता है बढ़ावा देना, इनोवेशन मतलब क्या हो जाता है आपका नवाचार, और ग्रोथ मतलब क्या हो जाता है विकास। तो पूरा अनुवाद इसका क्या हो गया, जो समाज सीखने और आलोचनात्मक सोच को महत्व देता है, अ सोसाइटी दैट वैल्यूज लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, वह नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करता है, फॉस्टर्स इनोवेशन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट सेंटेंस, टेक्नोलॉजी हैज मेड एजुकेशन मोर एक्सेसिबल बट इट मस्ट बी यूज्ड वाइजली टू ब्रिज गैप्स रादर देन वाइडन देम। टेक्नोलॉजी का क्या हो गया आपका, प्रौद्योगिकी हैज मेड एजुकेशन मतलब शिक्षा, एक्सेसिबल का मतलब हो जाता है सुलभ, बट इट मस्ट बी यूज्ड वाइजली मतलब इसका समझदारी से उपयोग किया जाना चाहिए, टू ब्रिज गैप्स मतलब अंतर जो है उसको पाटने के लिए, ब्रिज गैप्स अंतर को पाटने के लिए, रेदर देन वाइडन देम मतलब उसको बढ़ावा नहीं देना है, उस अंतर को पाटना है। तो इसको हम लोग अनुवाद पूरा कैसे करेंगे, प्रौद्योगिकी ने शिक्षा को अधिक सुलभ बना दिया है, टेक्नोलॉजी हैज मेड एजुकेशन मोर एक्सेसिबल, लेकिन इसका समझदारी से उपयोग किया जाना चाहिए, बट इट मस्ट बी यूज्ड वाइजली, ताकि यह अंतर को पाटने का काम करे, न कि उसे और बढ़ाने का, टू ब्रिज गैप्स रेदर देन वाइडन देम। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, टीचर्स एंड मेंटर्स हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन शेपिंग यंग माइंड्स एंड इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशन। टीचर्स मतलब शिक्षक, मेंटर्स मार्गदर्शक बोल सकते हैं आप, हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट, प्रोफाउंड इम्पैक्ट मतलब गहरा प्रभाव, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव हो जाता है, प्रोफाउंड मतलब गहरा प्रभाव, ऑन शेपिंग यंग माइंड्स मतलब युवा सोच को आकार देने में, एंड इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशन और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने में। तो इसका पूरा अनुवाद क्या हो जाएगा, शिक्षक और मार्गदर्शक, टीचर्स एंड मेंटर्स युवा सोच को आकार देने और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने में गहरा प्रभाव डालते हैं, हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन शेपिंग यंग माइंड्स एंड इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशंस। अगला सेंटेंस, द पावर ऑफ नॉलेज इज नॉट जस्ट इन एक्वायरिंग फैक्ट्स बट इन अप्लाइंग देम फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। द पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्ञान की शक्ति, इज नॉट जस्ट इन एक्वायरिंग फैक्ट्स मतलब तथ्यों को प्राप्त करना, बट इन अप्लाइंग देम, अप्लाई करना मतलब लागू करना, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी का अर्थ क्या हो गया आपका, समाज के कल्याण हेतु। तो पूरा अनुवाद इसमें क्या हो जाएगा, ज्ञान की शक्ति केवल तथ्यों को प्राप्त करने में नहीं है बल्कि उन्हें समाज के कल्याण के लिए लागू करने में है। नेक्स्ट सेंटेंस, लाइफलॉन्ग लर्निंग इज एसेंशियल इन रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, दोज हु एम्ब्रेस क्यूरियोसिटी एंड एडेप्टेबिलिटी आर बेटर इक्विप्ड टू फेस चैलेंजेस। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब जीवन भर सीखते रहना, इज एसेंशियल मतलब आवश्यक है, इन ए रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड तेजी से बदलती दुनिया में, रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, तो क्या हो गया अनुवाद, तेजी से बदलती दुनिया में जीवन भर सीखते रहना आवश्यक है। दोज हु एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मतलब हो जाता है अपनाना, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, एडेप्टेबिलिटी मतलब अनुकूलनशीलता, आर बेटर इक्विप्ड, बेटर इक्विप्ड का अनुवाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अधिक सक्षम, टू फेस चैलेंजेस चुनौतियों का सामना करने में। तो इसका पूरा अनुवाद क्या हो गया, जो लोग जिज्ञासा और अनुकूलनशीलता यानी क्यूरियोसिटी एंड एडेप्टेबिलिटी को अपनाते हैं, मतलब दोज हु एम्ब्रेस क्यूरियोसिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, वे चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं, आर बेटर इक्विप्ड टू फेस चैलेंजेस। नेक्स्ट सेंटेंस, ट्रू प्रोग्रेस इज अचीव्ड व्हेन नॉलेज इज शेयर्ड एंड यूज्ड फॉर कॉमन गुड। ट्रू प्रोग्रेस मतलब सच्ची प्रगति, इज अचीव मतलब प्राप्त किया जाना, व्हेन नॉलेज इज शेयर्ड मतलब जब ज्ञान को साझा किया जाता है, एंड यूज्ड फॉर द कॉमन गुड मतलब सार्वजनिक हित में उसका उपयोग किया जाता है। तो पूरा अनुवाद इसको कैसे लिखेंगे, सच्ची प्रगति तब होती है जब ज्ञान साझा किया जाता है और सार्वजनिक हित में उसका उपयोग किया जाता है। तो ये था आपका इंग्लिश के पैसेज का हिंदी में ट्रांसलेशन। अब आते हैं हिंदी के अनुच्छेद में। तो आपका प्रश्न 2 का पार्ट बी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, तो हिंदी में आपका एक अनुच्छेद दिया हुआ था जिसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था। तो चलिए एक एक वाक्य को हम लोग एक एक स्लाइड में लेते हैं और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते चलते हैं। तो पहला वाक्य था आपका, आम जनता को चुनाव से पूर्व सरकारों या राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त योजनाओं के वादे देश के विकास में बाधक हो सकते हैं। तो इसका देखिए अनुवाद क्या हो जाएगा, प्रोमिसेस ऑफ फ्री स्कीम्स मतलब मुफ्त योजनाओं के वादे बाय गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज
सरकारों या राजनीतिक दलों बिफोर इलेक्शंस मतलब चुनाव से पूर्व कैन हिंडर द कंट्रीज डेवलपमेंट, देश के विकास में बाधक हो सकते हैं। हिंडर मतलब बाधक होना, कंट्रीज डेवलपमेंट मतलब देश के विकास में। ठीक है, अगला वाक्य है, देखा जाए तो चुनाव के समय घोषित मुफ्त योजनाएं प्रारंभ में लोगों के जीवन के लिए भले ही राहत का जरिया बन जाए, लेकिन इन योजनाओं से लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना कमजोर होती है और परजीवी मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। तो देखिए इसमें देखा जाए तो इफ वी लुक एट इट, चुनाव के समय घोषित मुफ्त योजनाएं द फ्री स्कीम्स अनाउंस्ड ड्यूरिंग इलेक्शंस प्रारंभ में लोगों के लिए भले ही राहत का जरिया बन जाए, मे इनिशियली प्रोवाइड रिलीफ टू पीपल, लेकिन इन योजनाओं से लोगों में आत्मनिर्भरता को हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्फ रिलायंस, ये आपका हो गया सेल्फ रिलायंस की भावना कमजोर होती है। बट दे वीकेन मतलब कमजोर करना, द सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता की भावना, एंड ऑल्सो प्रोमोट ए डिपेंडेंट माइंडसेट मतलब परजीवी मानसिकता, इसका अनुवाद हो गया परजीवी मानसिकता का डिपेंडेंट माइंडसेट। तो पूरा अनुवाद इसका हो गया, इफ वी लुक एट इट द फ्री स्कीम्स अनाउंस्ड ड्यूरिंग इलेक्शंस may initially provide relief to people, but they weaken the sense of self reliance and promote a dependent mindset। अगला वाक्य, अदालत का मानना है कि मुफ्त योजनाएं लोगों को काम करने की प्रवृत्ति से दूर कर रही है और इससे उनकी व्यक्तिगत विकास की क्षमता सीमित हो रही है। तो अदालत का आपका अनुवाद हो जाएगा कोर्ट का मानना है कि द कोर्ट बिलीव्स दैट मुफ्त योजनाएं यानी फ्री स्कीम्स लोगों को काम करने की प्रवृत्ति से दूर कर रही है, आर डिस्करेजिंग मतलब दूर करना, पीपल फ्रॉम वर्किंग मतलब काम करने की प्रवृत्ति से दूर करना, उसको हमने लिखा है डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम वर्किंग, और इससे उनकी व्यक्तिगत विकास की क्षमता सीमित हो रही है, एंड लिमिटिंग मतलब सीमित होना, देयर पोटेंशियल हो जाता है क्षमता, फॉर पर्सनल ग्रोथ मतलब व्यक्तिगत विकास की उनकी जो क्षमता है सीमित हो रही है, लिमिटिंग देयर पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। अगला वाक्य, आज देखा जाए तो एक दूसरे पर रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाले राजनीतिक दल हर चुनाव से पूर्व मुफ्त योजनाओं का पिटारा खोलकर बैठ जाते हैं। तो आज देखा जाए, टुडे इफ वी ऑब्जर्व, तो एक दूसरे पर रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाला, रेवड़ी कल्चर का हमारा अनुवाद क्या हो जाएगा, फ्री बी कल्चर देने का आरोप लगाने वाले राजनीतिक दल, द पॉलिटिकल पार्टीज दैट एक्यूजेस ईच अदर ऑफ प्रोमोटिंग द फ्री बीज कल्चर, एक्यूजेस का मतलब क्या हो जाता है, आरोप लगाना, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, फॉर ऑफ प्रोमोटिंग मतलब बढ़ावा देना, प्रोमोट मतलब बढ़ावा देना, फ्री बी कल्चर वही बोलते हैं रेवड़ी कल्चर हिंदी में। टुडे इफ वी ऑब्जर्व, अगर आज देखा जाए तो द पॉलिटिकल पार्टीज दैट एक्यूजेस ईच अदर ऑफ प्रोमोटिंग द फ्री बी कल्चर, एक दूसरे पर रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाले राजनीतिक दल, themselves unveil a bundle of free schemes, अनवील मतलब खोलना, बंडल मतलब गठरी या पिटारा, ऑफ फ्री स्कीम्स मुफ्त योजनाएं, बिफोर एवरी इलेक्शन मतलब चुनाव से पूर्व। तो क्या हो गया इसका, तो पूरा अनुवाद देख लेते हैं, टुडे इफ वी ऑब्जर्व द पॉलिटिकल पार्टीज दैट एक्यूजेस ईच अदर ऑफ प्रोमोटिंग द फ्री बी कल्चर themselves unveil a bundle of free schemes before every election, वो हर चुनाव से पूर्व मुफ्त योजनाओं का पिटारा खोलकर बैठ जाते हैं। अगला वाक्य, इसका असर यह है कि देश का मतदाता जागरूक होने के स्थान पर लाभार्थी बनकर बैठ जाता है। देश का मतदाता मतलब वोटर्स ऑफ द कंट्री या कंट्रीज वोटर, असर मतलब इम्पैक्ट, जागरूक होना मतलब बिकमिंग अवेयर, लाभार्थी का अर्थ होता है बेनिफिशियरीज। तो पूरा इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, द इम्पैक्ट ऑफ दिस, इसका असर यह है, इज दैट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अवेयर मतलब जागरूक होने के स्थान पर, द कंट्रीज वोटर्स जो देश का मतदाता है, स्टार्ट सीइंग देमसेल्व्स मियरली एज ए बेनिफिशियरीज, तो जागरूक होने के स्थान पर लाभार्थी होकर बनकर बैठ जाता है। इसका हमने भावानुवाद इस तरह से किया है, द इम्पैक्ट ऑफ दिस इज दैट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अवेयर द कंट्रीज वोटर्स स्टार्ट सीइंग देमसेल्व्स मियरली एज बेनिफिशियर्स, मतलब वो सिर्फ लाभार्थी बनकर रह जाते हैं, बैठ जाते हैं जो भी। अगला वाक्य, इन योजनाओं में मुफ्त शिक्षा या चिकित्सा जैसी योजनाओं को प्राथमिकता देने के स्थान पर नगद भुगतान योजना, बिजली व पानी की सुविधाओं को मुफ्त किए जाने की घोषणाएं ज्यादा रहती है। तो मुफ्त शिक्षा या चिकित्सा मतलब फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर, प्राथमिकता का क्या हो जाता है, प्रायोरिटाइजिंग, नगद भुगतान योजना मतलब कैश पेमेंट स्कीम्स, बिजली व पानी की सुविधाओं को मुफ्त किया जाना, मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सर्विसेज फ्री, घोषणा का क्या हो जाएगा, अनाउंसमेंट्स। तो पूरा इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग स्कीम्स लाइक फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर, मुफ्त शिक्षा या चिकित्सा जैसी योजनाओं को प्राथमिकता देने के स्थान पर मोस्ट अनाउंसमेंट फोकस ऑन कैश पेमेंट स्कीम्स एंड मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सर्विसेज फ्री, नगद भुगतान योजना, बिजली और पानी की सुविधाओं को मुफ्त किए जाने की घोषणा ज्यादा होती है। ठीक है,
अगला वाक्य है आपका, राजनीतिक दलों की इस मुफ्त योजना नीति के समक्ष देश के विकास के लिए टैक्स देने वाला कामकाजी वर्ग खुद को ठगा सा महसूस करता है। राजनीतिक दल मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, मुफ्त योजना नीति फ्री स्कीम पॉलिसी के समक्ष देश के विकास के लिए टैक्स देने वाला कामकाजी वर्ग, द टैक्स पेइंग वर्किंग क्लास, टैक्स देने वाला कामकाजी वर्ग यानी टैक्स पेइंग वर्किंग क्लास विच कंट्रीब्यूट्स टू द कंट्रीज डेवलपमेंट, देश के विकास में योगदान देने वाले, फील्स डिसीव्ड, डिसीव्ड फील्स डिसीव्ड मतलब ठगा सा महसूस करना, फील्स डिसीव्ड मतलब ठगा सा महसूस करना। तो पूरा अनुवाद क्या हो गया आपका, ड्यू टू दिस फ्री स्कीम पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज द टैक्स पेइंग वर्किंग क्लास विच कंट्रीब्यूट्स टू द कंट्रीज डेवलपमेंट फील्स डिसीव्ड, ठगा सा महसूस करता है। अगला वाक्य, आज जरूरत है कि सरकारें इस प्रकार की योजनाओं पर पुनर्विचार करें और लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कर देश के विकास में भागीदार बनाने का काम करें। तो आज जरूरत है, टुडे इट इज एसेंशियल, सरकारें इस प्रकार की योजनाओं पर पुनर्विचार करें, पुनर्विचार मतलब रीथिंक, टुडे इट इज एसेंशियल फॉर गवर्नमेंट्स टू रीथिंक सच स्कीम्स एंड वर्क टुवर्ड्स मेकिंग पीपल फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, मतलब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना मतलब फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट कर देश के विकास में भागीदार बनाने का कार्य करें। एनेबलिंग देम टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज डेवलपमेंट, एनेबल करना मतलब उनको इस लायक बनाना कि वो देश के विकास में अपना भागीदारी निभा सके। तो ये था आपका हिंदी के अनुच्छेद का इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हमने पूरा जो टेस्ट 3 जो आपका था उसका हमने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने खुद से प्रैक्टिस किया है इससे निबंध या ट्रांसलेशन जो भी आपने किया है मेरे टेस्ट सीरीज से, तो आपने सेल्फ इवैल्यूएशन कर लिया होगा। इससे आपको बहुत सारे शब्दावली का ज्ञान हो गया होगा। जहां भी आपको लगता है आपने गलत की, नेक्स्ट टाइम आप उसको सही करने का प्रयास करेंगे। यही मकसद है सेल्फ इवैल्यूएशन का और टेस्ट सीरीज का। तो टेस्ट सीरीज में आप लोग जरूर से जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप इवैल्यूएशन के लिए उसी दिन सेंड करें, लेकिन एक वीक का आपके पास समय होता है। एक वीक के अंदर कभी भी जब भी आपको समय मिले आप लोग प्रैक्टिस करें उस पर, उन सारे प्रश्नों का, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ट्रांसलेशन भी इसी तरह का आपके परीक्षा में आने वाला है। तो जितना ज्यादा आप लोग प्रयास करेंगे उतना ज्यादा आपको अभ्यास होगा लिखने का, और उतने अच्छे तरीके से आप लिख के अच्छे से अच्छा अंक आप परीक्षा में ला सकते हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन वीडियो मैं लेके आता हूं उसके बाद, ताकि आप उसका मिलान कर सकें और आप देखें कि कहाँ कमी रह गई और किस चीज को आप कितना बेहतर लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।